So let us see word problems related to subtraction. So before starting with the word problem, there are some keywords that will help you to understand in the word problem which operation you are going to use, मतलब whether you are going to use addition, subtraction, multiplication or division. If in the word problem terms like this, how many left, okay, how many are there, how many left, decrease, difference, take away, remain, etc. These types of words are there in the word problems, then it means that we have to subtract. तो हमेशा क्या होगा कि word problems में आपको total पहले ही given होगा और उसमें से आपको कुछ चीज़ आपको पूछा जाएगा कि उसमें से अब कितना बचा, मतलब कुछ क्वांटिटी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी, टोटल ऑलरेडी आपको गिवन होगा. इन एडिशन वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल, बट यहाँ पे टोटल हमें गिवन होगा, एक लार्जर नंबर होगा, एक स्मॉलर नंबर होगा. देन व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट यू विल फाइंड आउट द लेफ्ट नंबर और द रिमेन और डिक्रीज, डिफरेंस, टेक अवे, इस तरीके का आपको निकालना होगा. सो लेट अस सी द क्वेश्चन हियर. आउट ऑफ 7,526 फ्लैट्स इन न्यू कॉलोनी, 3,839 फ्लैट्स आर सोल्ड. ओके, आउट ऑफ how many flats are there? Total flats in colony 7,526, and how many flats are sold? 3,839. ओके, टोटल हमें ऑलरेडी दिया है और इसमें से इतना कम हो गया है. नाउ सी इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड हाउ मैनी फ्लैट्स आर स्टिल अनसोल्ड, मतलब अभी तक कितने फ्लैट्स बचे हुए हैं जो कि नहीं बिके हैं. ओके, सो फर्स्ट वी हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पे हमें टोटल में से इन फ्लैट्स जो बिक गए हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें नंबर ऑफ फ्लैट्स अनसोल्ड मिल जाएगा. सो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसकी लैंग्वेज समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वी विल write the solution. So given you have to write then total flats in colony. गिवन क्या है? टोटल फ्लैट्स हमेशा ऑलरेडी आपको दिया होगा. टोटल फ्लैट्स इन कॉलोनी 7,526. देन यू विल राइट हाउ मेनी फ्लैट्स आर sold, number of flats sold. Okay, please write the proper statements. So number of flats sold are 3,839. आप proper statement नहीं लिखते और फिर इसके बाद mistakes होती है. फिर आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ फ्लैट्स अनसोल्ड. तो वो आप किस तरीके से निकालोगे? टोटल फ्लैट्स इन कॉलोनी लिखकर माई सब्ट्रैक्ट किसे करोगे? इस नंबर को जो फ्लैट्स सोल्ड हो गए हैं. ओके, दिस यू विल राइट. ओके, दीज आर द स्टेप्स. इसी तरीके से लिखना है, यहीं के यहीं पे सब्ट्रैक्ट मत कर देना. ओके, इट लुक्स वेरी मेसी. सो यू विल राइट इट ओवर हियर. देन आफ्टर दिस you will actually subtract. Okay, you will do the actual subtraction. So when we will subtract, this is 6, we will have to borrow from here. So this will become 1, okay, and this will become 1, 5, 1, 6, 16. So 16 minus 9 is how much? 16, 15, 16. 16 minus 9 is 6 plus 1, 7. Okay, and this is 1. So it cannot subtract 3. We will borrow from here. So it will become 4 and this will become 1, 1, 11. 11 minus 3 is how much? 11 minus 3, 6, 7, 8. How much? 8. Okay. And now this is 4. Again it can't subtract. So it will borrow from here and it will become 1, 4, 14. Okay, 14 minus 8 is how much? This is 14 minus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 will come over here. Now 6 minus 3 is 3. So this is the number of flats that are unsold. So after solving this step you have to write after it. Okay, here space was not there. So how now the ending statement will be
Please write the ending statement. Or thus 3687 flats are still unsold. This is the proper way of writing a word problem. Please do not make mistake. word problem किसी की भी हो, multiplication, division, addition, subtraction, सभी में यही same चीज़ follow होती है. That is the way of writing the word problem. First you have to understand what is given, what is being asked, and what you have to find out. Okay, which ऑपरेशन यू हैव टू यूज़, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, उसके बाद आप सॉल्व करोगे और फिर एंडिंग स्टेटमेंट वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए और प्रॉपरली स्टेटमेंट्स वहाँ पे लिखे होना चाहिए. ओके, और जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए हैं वही आपको यहाँ पे लिखने, अपनी मर्जी से मत लिखा करो. अदरवाइज़ आपने भले ही सब कुछ सही किया हो और यहाँ पे नंबर्स अगर आपने गलत लिख दिए हैं, देन योर आंसर्स और योर सोल्यूशन विल बी wrong. Okay, it will be considered wrong. So these things you have to keep in mind. So look over here. Here is another word problem from exercise. Soham had a collection of 2764 stamps. He gave away 1402 stamps. Okay, he had total how many stamps? यहाँ पे total दिया गया है कि उसके पास टोटल 2764 स्टैम्प्स थे एंड ही गेव अवे 1400 स्टैम्प्स उसने किसी को दे दिया. हाउ मैनी स्टैम्प्स वर लेफ्ट? देखो लेफ्ट दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है. टोटल आपको पहले ही दे दिया गया है और उसमें से उसने कुछ किसी और को दे दिए और अब उसके पास कितने स्टैम्प्स बचे. सो इन द सॉल्यूशन यू विल फर्स्ट राइट गिवन. ओके, दिस इज द गिवन information. So you will write over here given number of stamps Soham had. Okay, और total number of stamps Soham had कितने थे? 2764. फिर he gave away stamp, ये information आप लिख रहे हो क्वेश्चन में से देख करके. 1402 stamps. Now stamps left equals to, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 2000 जैसे हमने पहले देखा, आप यहाँ पे लिखोगे 2764 माइनस 1402. ओके, दीज आर द स्टैम्प्स लेफ्ट ओवर हियर. ओके, सो दीज आर स्टैम्प्स लेफ्ट. देन यू विल सब्ट्रैक्ट over here and the answer, whatever the answer you will get, you will not stop over here, you have to write the ending statement also. Thus there were 1362 stamps left with Soham, or this much statement is sufficient. तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट्स होने चाहिए और प्रॉपरली आपको सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पर. ओके, शो करना है, डायरेक्टली नहीं लिखना है. तो इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करनी है. नाउ लेट अस सी अनदर वर्ड प्रॉब्लम. दैट इज़ अ गार्डनर प्लांटेड 3006 सैपलिंग्स इन अ पार्क. उसने इतनी सैपलिंग्स मतलब पौधे जो होते हैं उन्होंने पार्क में प्लांट किए. हैवी रेन्स डैमेज्ड 1769 सैपलिंग. तो बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से इतनी सैपलिंग्स जो थी वो डैमेज हो गई. हाउ मैनी सैपलिंग्स वर सेव्ड? ओके, तो कितनी सैपलिंग्स सेव हो गई मतलब कितनी सैपलिंग्स बच गई. तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ सैपलिंग्स गार्डनर प्लांटेड इन द पार्क इक्वल्स टू 3006. टोटल सैपलिंग्स इतनी थी. नंबर ऑफ सैपलिंग्स जो डैमेज हो गई उनका नंबर आपको लिखना है. देन व्हाट यू हैव टू डू, नंबर ऑफ सैपलिंग्स सेव्ड उसको आपको फाइंड आउट करना है. तो कैसे करोगे? 3006 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके. नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट ओवर हियर एंड व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट you will get 1237. Thus 1237 saplings were saved. So in this way you have to solve the word problems.